बेटा आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है, तो सलाम का जवाब तो दिया करें बच्चों। अच्छा बेटा, ऐसा है कि कल हम लोगों ने पढ़ा था एंजाइम की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, and then we discuss about the enzyme specificity. We talked about the effect of temperature on the enzyme activity, and we also talked about the active sites. And I have given the idea of induced fit theory as well. तो टेम्परेचर का इफेक्ट तो आप लोगों ने कल पढ़ ही लिया था ग्राफ के थ्रू, और एंजाइम की स्पेसिफिसिटी भी पढ़ ली थी। आज जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो है इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। सो टुडे लेक्चर के अंदर थोड़ी सी चीजें और कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ मूव करेगी। हम पीएच के साथ साथ कुछ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन में रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर बात करेंगे, जो एंजाइम का सबसे सेंसिटिव टॉपिक है और इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज बेस्ड है और most of the students remain confused in that area. So I just request you to please focus on this lecture, and I mean also connecting with you. So koi bhi question hai to just raise your hand and ask me the questions. So please stay with me now. So here is the effect of pH on the enzyme activity. So previous class में हम चूंकि temperature पढ़ लिया था, आज हम pH का effect पढ़ने जा रहे हैं. So please focus. After hydrogen, after heat, so when you are going to increase the temperature, hydrogen bonds were broken down in the protein molecule, and when the hydrogen bonds have been broken down, the 3D shape of the enzyme will be disrupted, and this disruption will reach to the active sites, and when there is a disruption in the active site means the enzyme will be denatured. So now we will discuss about its pH effect other than temperature, and let's see what the pH is going to do. The effect of pH is variable from enzyme to enzyme in an enzyme controlled reaction. So like one of the pH is quite dangerous for a particular enzyme, but it is very useful for the other enzyme. Its effect is variable from enzyme to enzyme. Like one of the pH, if boost up the activity of enzyme, the same pH may disrupt the other enzyme, right? Some enzymes work best in alkaline medium, like lipase. Lipase acts on lipids, and some in acidic environment, protease, while others in neutral environment, like amylase. So keep in mind and keep in mind the important medium for these enzymes. So lipase act in alkaline medium, amylase act in neutral medium, and protease act in acidic environment. Extreme pH also causes denaturation of enzyme. Extreme का word लगाया गया है कि अगर बहुत ज्यादा pH हो उन एंजाइम पे जहां पे कम pH चाहिए होता है, जैसे प्रोटीएज पे अगर आप pH को बहुत बढ़ाएं या लाइपेज पे आप pH को बहुत कम करें तो they can cause denaturation of the enzymes. At extreme pH होता क्या है, higher concentration of H plus ions or OH ions disrupt ionic bonds because of charge disbalance. ये मैंने आपको बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के अंदर भी बता दिया था कि आयनिक बॉन्ड जो है वो किस चीज से टूटते हैं, पीएच से। तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स को किसने तोड़ा था, टेम्परेचर ने, और पीएच जो है वो आयनिक बॉन्ड्स बना को तोड़ते हैं, और ये दोनों बॉन्ड्स प्रोटीन के अंदर, टर्शियरी प्रोटीन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब आप इन बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे तो माइट बी कि ये बॉन्ड्स उन अमाइनो एसिड के दरमियान बॉन्ड टूट जाए जो कि आयनिक, जो कि एक्टिव साइट्स के ऊपर होते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि एक्सट्रीम पीएच, एक्सट्रीम पीएच पे क्या होगा, H प्लस आयन ज्यादा होंगे। अगर आप एक्सट्रीम पीएच काफी लो करेंगे तो H आयन ज्यादा हो जाएंगे, अगर एक्सट्रीम पीएच बहुत ज्यादा करेंगे तो OH आयन ज्यादा हो जाएंगे। और ये दोनों जो है आयन्स, दोनों क्योंकि चार्ज है इसलिए ये आयनिक बॉन्ड को डिसरप्ट कर सकते हैं, जिससे एंजाइम एक बार फिर डीनेचुरेशन की तरफ जा सकता है। If these ionic bonds are present between amino acids of active site, the enzyme molecule will suddenly get denatured because of the deterioration
of the active sites. तो इसका मतलब है कि इनकी एक्टिव साइट डिटोरिएट होंगे और इसकी वजह क्या होगी? बॉन्ड्स का तोड़ना. Look at this graph. I mean, so the pH for the pepsin, which is a protease, is about 1.5 or 2 is the maximum pH for pepsin to work best. However, it goes to decrease its activity, and at 4 Celsius, it moves toward the denaturation. Salivary amylase, which is actually the acting on the carbohydrates, on the starch and other molecule, and its pH is about 6 point something, is near about the neutral. However, if you are increasing its if the pH is going to be increased, it also moves to the denaturation. Similarly, alkaline phosphatase. Phosphatase is one of the enzyme which is a class of some of the lipids, which are acting on most of the lipid molecule, and its environment, the best environment is 9 pH. So these are the ranges of different pHs which act on the enzyme, where the enzyme activity is variable. बेटा आप लोग समझ रहे हो? कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? जी बेटा, यहाँ तक क्लियर है? कोई सवाल आपके जहन में हो, प्लीज पूछ सकते हैं. पीएच का मैंने बताया था कि पीएच का इफेक्ट जो है वो वेरिएबल होती है, अनलाइक टेम्परेचर. टेम्परेचर में तो आप कहते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो तकरीबन मोस्ट ऑफ द एंजाइम बिहेव लाइक इन द सेम वे. यानी अगर आप 40 तक जाते हैं तो एंजाइम एक्टिविटी बढ़ती है और उसके बाद कम होना शुरू हो जाती है और फिर डिनेचर. लेकिन पीएच में काफ़ी वेरिएबिलिटी है, यानी इसमें हर एक एंजाइम की अपनी अपनी पीएच होते हैं. जैसे कि आपने देखा कि जो लाइपेज है वो हायर पीएच पे काम कर रहा होता है. अमाइलेज जो है वो न्यूट्रल के करीब होता है और प्रोटीज जो है वो लो पीएच पे एक्टिव होता है. सो ऑल ऑफ यू आर गेटिंग? कोई कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं है? आगे चले. उमर जहाँ से. सर क्लियर है सर. ओके ठीक है, सो प्लीज. Look at this now. Now we were discussing about the course of enzyme reaction. Enzyme का जो reaction है किस नौइयत का होता है, किस तरह का रिएक्शन होता है एंजाइम का. बेटा इस ग्राफ को जरा गौर से देखें, क्या हो रहा है इस ग्राफ के अंदर. हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम है और वाई एक्सिस के ऊपर क्या है? टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कलेक्टेड. टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कलेक्टेड का मतलब है ये प्रोडक्ट है हमारे पास मिलता है एंजाइम के रिएक्शन से. यहाँ जो एंजाइम हमने देखा है वो एंजाइम है कैटालेज. कैटालेज एंजाइम का नाम है और ये एंजाइम करता क्या है? ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तोड़ता है, H2O2 को तोड़ता है. हाइड्रोजन पेरोक्साइड जब टूटता है तो प्रोडक्ट बनता है वाटर एंड ऑक्सीजन, यानी H2O प्लस ऑक्सीजन. चूंकि ऑक्सीजन इस गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है, इसको कलेक्ट करना कंपैरेटिवली आसान होता है, इसका वॉल्यूम मेजर करते हैं. तो हमारा जो एंजाइम है वो क्या है? वो फिक्स्ड है, फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ एंजाइम है एंड फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ H2O2 है. हम एंजाइम और सबस्ट्रेट नहीं बढ़ा रहे, दोनों फिक्स हैं. अलबत्ता हम टाइम चेक कर रहे हैं. On x axis we have time, on y axis we have product. अब आप जरा मुझे बताएं इस ग्राफ को गौर से देखिए क्या हो रहा है. सबसे फास्ट रिएक्शन किस टाइम पे है? कौन से सेकंड्स पे फास्ट रिएक्शन है? सर फर्स्ट 30 सेकंड्स. गुड. जो ही 30 सेकंड के बाद हम आगे जाते जाते हैं, रेट आहिस्ता आहिस्ता स्लो होता जाता है और यहाँ तक कि हमारे अगर आप रेट देखिए तो 390 सेकंड्स पे रेट बिल्कुल स्लो हो जाता है. कोई रीजन बता सकते हैं नबील, क्या रीजन हो सकता है बेटा इसका? ये क्यों रिएक्ट ऑफ रिएक्शन? सर इनिशियली सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन सबसे मैक्सिमम पे होती होगी इसलिए.
बिल्कुल सही है। जो ही विद द कोर्स ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ, कॉन्सेंट्रेशन सबस्ट्रेट की कम होती जाती है। आपको पता होना चाहिए जितना ज्यादा सबस्ट्रेट होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता है, अगर एंजाइम एक्सेस में हो तो। लेकिन ऐसा भी ना हो कि एंजाइम कम हो और आप सबस्ट्रेट बढ़ा रहे हो तो फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसलिए अगर एंजाइम पहले से ज्यादा हो और आप सबस्ट्रेट बढ़ा रहे हो तो आपका जो रेट होगा वो बढ़ता जाएगा। लेकिन यहाँ तो ये रेट नहीं है, बल्कि हाँ रेट है, सॉरी, वाई एक्सिस पे लिखा है कलेक्टेड पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कितना वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन हमें मिल रहा है और कितनी देर में मिल रहा है। तो ये असल में रेट ही बन गया ना, 30 सेकंड में कितना है, 90 में कितना है। तो अगर आप ये इस हिसाब से देखिए, मुझे जरा बताएं 30 सेकंड में कितना वॉल्यूम बना है ऑक्सीजन का? 2.7 समथिंग, ऐसा ही है। Yes, sir. अच्छा, अगर 30 सेकंड में 2.7 है तो 60 में 5.4 हो जाना चाहिए था, ऐसा है या नहीं है? डबल हो गया। Yes. लेकिन क्या 5.4 है यहाँ पर? 4.5 है। 5.4 तो नहीं है ना, कम है ना। देखिए ना बेटा, 30 सेकंड में कितना है, 2.7 है। Yes, sir, कम है। हाँ, तो 60 सेकंड में Yes, sir, 5.4, कम है, सर कम है। इसका मतलब है कि आगे जो ही आप जाएं हर इंटरवल पे रेट कम हो रहा है। पहले 30 सेकंड में बहुत फास्ट था, अगले वाले 30 सेकंड में स्लो हो गया, अगले वाले 30 में और स्लो होगा और अगले 30 वाले में और स्लो होगा। तो इसका रीजन क्या है? जैसे अभी बताया कि सबस्ट्रेट जो है वो कम हो रहा है। देखो, when the enzyme and substrate are first mixed, there are a large number of substrate molecules. शुरू में सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा होंगे। At any moment, virtually every enzyme molecule has a substrate molecule in its active site. यानी हम अगर कंसिडर करें तो हम ये कह सकते हैं कि इतना सारा सबस्ट्रेट है कि हम कम से कम कह सकते हैं कि हर एंजाइम के एक्टिव साइट में एक एक सबस्ट्रेट या जो भी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड है वो अटैच है। मतलब सारे एंजाइम जो है वो अपना काम कर रहे हैं, फुल एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सबस्ट्रेट कम करेंगे तो कुछ एंजाइम ऐसे होंगे जिसके जिसके एक्टिव साइट खाली पड़े रहेंगे, वो काम नहीं करेंगे, अगर एंजाइम ज्यादा होंगे लेकिन रेट फास्ट नहीं होगा। तो एक तो ये चीज आप समझ लें। अच्छा, द रेट एट विच द रिएक्शन occurs depends only on how many enzyme molecule there and the speed at which the enzyme can convert the substrate into product, release it, and then bind with another substrate molecule. बहुत इंपॉर्टेंट बात, तीन बातें बताई इसने। द रेट एट विच द रिएक्शन अकर्स, अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन को, अच्छा ये बातें उस वक्त हैं कि अगर आपके पास सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो है वो ऑलरेडी एक्सेस में हो, सबस्ट्रेट कम नहीं होना चाहिए। अगर सबस्ट्रेट ज्यादा हो और फिर आप ये देखते हैं कि रिएक्शन फास्ट है या स्लो है, तो फिर आप किस चीज पे डिपेंड करेंगे? एंजाइम के ऊपर, एंजाइम किस तरह काम कर रहा है। तो एंजाइम की तीन चीजें देखी जाती हैं। पहला, हाउ मेनी एंजाइम मॉलिक्यूल देयर, एक तो एंजाइम कितने हैं, ज्यादा है या कम है। एंड द स्पीड एट विच द एंजाइम एंड द स्पीड एट विच द एंजाइम कैन कन्वर्ट द सबस्ट्रेट, यानी ये क्या है? ये एंजाइम की एफिनिटी है, एंजाइम की एफिनिटी है, लाइकनेस है कि वो सबस्ट्रेट को कितना लाइक करता है। मतलब उसकी स्पेसिफिसिटी कितनी है, बहुत ज्यादा है, कम है। क्योंकि कुछ एंजाइम का स्पीड बहुत स्लो होता है, कुछ एंजाइम का स्पीड बहुत फास्ट होता है, इररिस्पेक्टिव फ्रॉम देयर नंबर। एंजाइम की नंबर मैटर नहीं करता, एंजाइम के एक्टिव साइट्स जो सबस्ट्रेट के साथ मिलता है। बाज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जल्दी बन जाते हैं, बाज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स टाइम लेते हैं। बाज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जल्दी टूट जाते हैं प्रोडक्ट रिलीज करते हुए, और बाज जो है वो ज्यादा देर तक रहते हैं, जिससे रेट पे फर्क पड़ता है। तो बेटा, सिर्फ एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन या सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन रिएक्शन को के रेट को आगे पीछे नहीं करता, बल्कि एंजाइम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का बनना और इसका प्रोडक्ट को रिलीज करना भी मैटर करता है। और ये दोनों चीजों का ताल्लुक होता है एंजाइम की एफिनिटी के साथ। तो दो चीजें सामने आई, एक एंजाइम की तादाद यानी एक्टिव साइट की तादाद, और दूसरा एक्टिव साइट की जो लाइकनेस है सबस्ट्रेट के साथ। मेरे ख्याल में आप मेरी बात समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? Yes, sir. तो एफिनिटी अलग चीज होती है, नंबर अलग चीज होती है। मतलब ये है, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि एक मॉलिक्यूल है जिसकी एफिनिटी बहुत कम है, आई मीन एक सब्सटेंस है
एक एंजाइम है, एक एंजाइम ए है और उनके बहुत सारे सबस्ट्रेट पड़े हैं और वो उसके ऊपर जब एक्ट करता है तो वो स्लो एक्ट करता है। अगर हम चाहते हैं कि इस रेट को थोड़ा सा कंपेंसेट करें, तो स्लो रेट कंपेंसेट करने के लिए अगर हम नंबर ऑफ एंजाइम ए बढ़ा देंगे, अगर जो उसकी एफिनिटी कम है, अगर एंजाइम ए बढ़ा देंगे तो वो रेट बढ़ा सकता है या नहीं? अगर तादाद बढ़ा दें। पूछ रहा हूँ बेटा आप लोगों से। यस सर। सर बढ़ेगा मगर इतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा जितना कि उसकी एफिनिटी बढ़ाने से बढ़ेगा। हाँ, देखो 2 चीज़ें हैं ना बेटा, 2 चीज़ें याद रखो। इसलिए 2 चीज़ें हमारे सामने आ गई। एक नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स कितने हैं और दूसरा एफिनिटी ऑफ द एक्टिव साइट विद द सबस्ट्रेट। मैं एक मिसाल दूँगा, आप लोगों ने ओ लेवल के अंदर पढ़ा था कि जब हम हाई एल्टीट्यूड पे चलते हैं, ऊपर जाते हैं हवा में, तो ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। ऐसे ही पढ़ा था आप लोगों ने? तो जब ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, तो फिर हम क्या करते हैं? आरबीसी बढ़ाते हैं। आरबीसी बढ़ाने से क्या फ़ायदा होगा जब ऑक्सीजन कम होगा? इसका मतलब ये हुआ कि हम इनडायरेक्टली जो इनकी एफिनिटी है, वो बढ़ा रहे हैं। एफिनिटी तो ख़ैर नहीं बढ़ सकती, लाइकनेस है, लेकिन देखिए, एफिनिटी का मतलब क्या होता है? चांसेस ऑफ चांसेस ऑफ एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स का बनना, कि वो कितनी जल्दी बन रहा है। तो अगर आप किसी सबस्ट्रेट के आस-पास में बहुत सारे एंजाइम कर दें या किसी एंजाइम के आस-पास में बहुत सारे सबस्ट्रेट करें, अब उसका दिल चाहे या ना चाहे वो कॉम्प्लेक्स बनाना शुरू करेगा। इसका मतलब है सबस्ट्रेट बढ़ाने से या एंजाइम बढ़ाने से यानी एक्टिव साइट बढ़ाने से भी रेट बढ़ सकता है और उनकी एफिनिटी बढ़ाने से भी। अब एफिनिटी तो हम लोग वर्चुअली ऐसे बढ़ा सकते हैं कि सिर्फ तादाद बढ़ा दें एक्टिव साइट की। तो इसलिए ये कह रहे हैं द रेट एट व्हिच द रिएक्शन अकर्स ओनली depends only on how many enzyme molecules there and the speed at which the enzyme can convert the substrate into product, release it and then bind. तो ये जो last 3 point आप देख रहे हो, ये वाले at which can convert the substrate into product, release it and then bind with another. ये तीनों point का ताल्लुक है affinity और पहला वाला point जो है वो enzyme के molecule से belong करता है. You getting now? अच्छा जी. Now, however, as more and more substrate is converted into product, there are fewer and fewer substrate molecule to bind with the enzyme. Enzyme molecules may be waiting for substrate molecule to hit their active sites. तो पॉइंट नंबर 2 में किस चीज पे फर्क पड़ रहा है? रेट क्यों स्लो हो रहा है? नंबर ऑफ एक्टिव साइट पे फर्क पड़ रहा है या एफिनिटी पे फर्क पड़ रहा है? जी बेटा, एफिनिटी। एफिनिटी पे फर्क पड़ रहा है क्योंकि एक्टिव साइट की तादाद कम थोड़ी हो रही है, एंजाइम तो ज्यादा है, लेकिन उसके आस पड़ोस में जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है वो कम हो रहे हैं। सबस्ट्रेट कम हो गए तो एंजाइम मुश्किल से जाके सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होगा, इसलिए रेट आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो रहा है। ठीक है? A fewer substrate molecules are left. The reaction gets slower and slower until it eventually stops. अच्छा, स्टॉप का मतलब ये है कि अब हमारे पास और प्रोडक्ट नहीं बनेगा और जब प्रोडक्ट नहीं बनेगा इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन भी 0 हो गया, खत्म हो गया और आपका प्रोडक्ट जो है जितना बना था वही रह गया। So as fewer substrate molecules are left, the reaction gets slower and slower until it eventually stops because all of the substrate have been converted into product. The curve of the graph therefore steepest at the beginning of the reaction. The curve of the graph therefore steepest at the beginning of the reaction, showing that the rate is always fastest at the beginning. This rate is called the initial rate of reaction. इस पूरी चैप्टर में ये आपने जो पहला सेंटेंस पढ़ा है इसमें बहुत क्वेश्चन है और आज से बाद इसको हम शुरू करेंगे। इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, जब भी हम एंजाइम रिएक्शन पढ़ते हैं तो उसमें अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि इस रिएक्शन का रेट क्या है या आपसे सवाल पूछेगी कि व्हाई इट्स बेटर टू कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन। इनिशियल रेट हमेशा कहते हैं 30 सेकंड्स के स्लोप पे आप रेट निकालोगे। आप में से कोई एक स्टूडेंट नबील जरा मुझे बता देंगे why it's not fair why it's not fair to calculate the rate in the middle of the reaction?
सर क्योंकि एंजाइम की कौन से मतलब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन कम हो गई होती है सबस्ट्रेट की। शाबाश। अच्छा नबील, अगर दो रिएक्शन है, रिएक्शन ए और रिएक्शन बी, और रिएक्शन ए जो है वो फास्टर है, रिएक्शन बी जो है वो स्लोअर है। दोबारा रिपीट करूं, रिएक्शन ए जो है वो फास्टर है, रिएक्शन बी जो है वो स्लोअर है। तो इन द मिडल ऑफ द रिएक्शन आपको नहीं लगता कि जो फास्ट रिएक्शन था अब वो स्लो हो गया होगा और जो स्लो रिएक्शन था वो फास्ट हो गया होगा? सर फास्ट वाला स्लो हो गया होगा लेकिन स्लो वाला थोड़ा और स्लो हो गया होगा। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं इसका जवाब देता हूं। जो फास्ट वाला था उसका टर्नओवर रेट बहुत फास्ट था। टर्नओवर रेट ये था कि सबस्ट्रेट जल्दी जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था और उनका सबस्ट्रेट कम हो रहा था। और जो स्लो रिएक्शन था वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा था। तो अगर आप 30 के बजाय 120 सेकंड्स पे जाते हो आगे, तो आप ये देखोगे कि जो पहला वाला फास्टेस्ट रिएक्शन था वो बिल्कुल समझो कि फिक्स्ड हो गया, यानी वो तकरीबन खत्म हो गया, जीरो पे आ गया, जीरो खत्म होने वाला है, बंद होने वाला है। और जो आपका दूसरा रिएक्शन है वो बहुत फास्ट हो गया होगा क्योंकि अभी उनके पास सबस्ट्रेट अभी भी ज्यादा है। मैं भी इसको आपको आगे दिखाऊंगा जब मैं कंपेयर करने जाऊंगा। मेरी बात वैसे थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? इसलिए हम कहते हैं कि मिडल पे या एंड पे आप कभी भी रिएक्शन को मेजर नहीं करें, बिकॉज इट्स बायस, इट डजंट गिव अ फेयर कंपैरिजन। तो जो फास्ट होगा उसको आप स्लो बोलोगे और जो स्लो होगा उसको आप फास्ट बोलोगे। इसलिए जब भी आप रिएक्शन कंपेयर करोगे, इनिशियली एट 30 सेकंड पे आप कंपेयर करोगे, क्योंकि 30 सेकंड पे फेयर कंपैरिजन इसलिए होती है क्योंकि दोनों रिएक्शन के दरमियान तकरीबन सबस्ट्रेट बराबर होता है। स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन में दोनों को बराबर बराबर सबस्ट्रेट दिए गए थे। इसलिए सबसे फेयरेस्ट वो होगा कि जितना आप स्टार्टिंग पे कैलकुलेट कर सकते हैं उतना आपका रिएक्शन फेयर होगा। आर यू गेटिंग मी? यस सर। सर मैं जो रिएक्शन ऑलरेडी शुरू से स्लो होगा तो उसमें अगर जो रिएक्टेंट है वो ज़्यादा भी होगा लेकिन उसका रेट पे कैसे इफेक्ट करेगा, क्योंकि उसकी एफिनिटी तो वही रहेगी ना रिएक्शन के आगे भी। देखो बात ये है, हाँ रेट, लेकिन यहाँ रिलेटिव रेट की बात हो रही है, कंपैरिजन की बात हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसका रेट बहुत तेज हो जाएगा, लेकिन वो जो पहला वाला रेट था उसमें फॉल बहुत तेजी से आ रही है, जो फास्ट वाला है उसमें फॉल तेजी से आ रहा होगा, और ये जो दूसरा वाला है इसमें फॉल स्लो आ रहा होगा। तो फॉल पे फैसला होगा ना, उसका फॉल इतनी तेजी से आ जाएगा कि इसका फॉल उससे स्लो है, इसलिए ये आपको फास्ट नजर आना शुरू हो जाएगा और वो स्लो। अभी मैं आपको दिखाऊंगा ग्राफ के थ्रू तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है? ओके। राइट। अच्छा, अब देखिए, इन दिस केस द रेट ऑफ ऑक्सीजन प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 30 सेकेंड इज 2.4 cm क्यूब, जैसे मैंने भी आपको दिखाया था, ऑफ ऑक्सीजन पर 30 सेकेंड्स, या फिर आप कह सकते हैं 5.4 cm क्यूब पर मिनट हो जाना चाहिए था रेट। अब आ गया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे थे कोर्स ऑफ रिएक्शन के अंदर, कि एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जो है बड़ा मैटर करता है। अगर आप किसी भी एंजाइम कंट्रोल रिएक्शन के अंदर सबस्ट्रेट बढ़ाते जाएंगे और एंजाइम फिक्स्ड हो लेकिन एंजाइम ऑलरेडी एक्सेस में हो, तो आपका रेट बढ़ता जाएगा। इसलिए फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि अगर आपके पास एंजाइम के 5 मॉलिक्यूल है और एक एंजाइम 5 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को कैटालाइज कर सकता हो, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। 5 एंजाइम है, एक एंजाइम 5 सबस्ट्रेट को 1 मिनट में कैटालाइज करता है। तो 1 मिनट के अंदर 5 सबस्ट्रेट को एक एंजाइम कैटालाइज करता है। तो अगर 5 एंजाइम होंगे तो 25 क्या होंगे, प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल बनेंगे 1 मिनट में। ऐसा ही है? यस सर। अच्छा, अब अगर हमारे पास सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल समझो कि 25 है और एंजाइम हमारे पास सपोज करें 10 है, तो 10 एंजाइम 50 सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन हमारे पास सबस्ट्रेट है ही 25। तो क्या लगता है आपको, रेट पे कोई फर्क पड़ेगा? वो जो बाकी 5 एंजाइम है वो खाली बैठे होंगे, काम तो नहीं कर रहे।
ऐसे केस में अगर एंजाइम के एक्टिव साइट ज्यादा हो और सबस्ट्रेट कम हो, ऐसे केस में अगर आप सबस्ट्रेट बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, इसलिए कि जो एंजाइम के एक्टिव साइट खाली बैठे पड़े थे वो भी काम में आना शुरू हो गए। अब मैं सबस्ट्रेट बढ़ा रहा हूँ, रेट बढ़ रहा है, बढ़ा रहा हूँ, यहाँ तक कि मैंने सबस्ट्रेट 50 कर दिए। तो 50 का मतलब है आप 1 मिनट के अंदर 50 प्रोडक्ट बन रहे हैं, लेकिन एंजाइम सारे सैचुरेट हो गए। अब मजीद सबस्ट्रेट बढ़ाने से क्या रेट पे फर्क पड़ेगा? नो। नो सर। अच्छा, जब रेट पे फर्क नहीं पड़ेगा तो हम क्या कहेंगे, हु इज द लिमिटिंग फैक्टर, सबस्ट्रेट और एंजाइम? एंजाइम। एंजाइम, क्योंकि जो चीज कम होगा वो लिमिटिंग फैक्टर होगा। इसका मतलब है ऐसे केस पे फिर आपको एंजाइम बढ़ाना होगा। और शुरू में क्या था, जब आपके पास 10 एंजाइम थे और 5 और 25 सबस्ट्रेट थे, तो उस वक्त सबस्ट्रेट लिमिटिंग फैक्टर था। जिस चीज को आप बढ़ाते हो और रेट बढ़ जाए वो लिमिटिंग फैक्टर कहलाता है। तो ये चीज अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। The rate of enzyme reaction increases with increase in substrate concentration, keeping the enzyme molecules in axis. अगर एंजाइम मॉलिक्यूल पहले से ज्यादा होंगे, एक्टिव साइट की तादाद ज्यादा होगी और फिर आप सबस्ट्रेट बढ़ाएंगे तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। In case of fixed concentration of enzyme, अगर fixed concentration enzyme की, while increasing the substrate concentration, तो क्या होगा? The rate initially increases and then the relative increase gradually slows down with the passage of time, as most of the active sites have been occupied by the substrate molecule and the enzyme concentration becomes the limiting factor. अगर आपके पास एंजाइम की फिक्स कॉन्सेंट्रेशन है लेकिन एक्सिस में है, जब आप सबस्ट्रेट बढ़ाओगे तो रेट बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर आप रिलेटिव रेट की बात करो, रिलेटिव का मतलब है पहले 30 सेकंड में बहुत फास्ट हो जाएगा, अगले 30 सेकंड में अगरचे एंजाइम अभी भी एक्सिस में है, लेकिन अगले 30 सेकंड में जो रेट है वो थोड़ा स्लो बढ़ता है। क्या वजह हो सकती है नबील? यानी अगरचे एंजाइम फिर भी एक्सिस में है और सबस्ट्रेट हम बढ़ा रहे हैं, तो फिर सेकंड इंटरवल में रेट पहले इंटरवल की तरह क्यों नहीं बढ़ता? सर वो सबस्ट्रेट भी मैक्सिमम है। सबस्ट्रेट हम बढ़ा रहे हैं। सबस्ट्रेट। शाबाश। इसलिए कि आपके वो एंजाइम जो कि इनिशियली रेट के अंदर यूज हो रहे हैं, क्योंकि उस वक्त कुछ एंजाइम मॉलिक्यूल जो है वो अपने अपने एक्टिव साइट्स को ऑक्युपाई करे, वही नॉर्मल ट्रेंड आ रहा है। क्योंकि सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल अगरचे आप बढ़ा रहे हैं, लेकिन वहां एंजाइम को आपने फिक्स रखा है, एंजाइम आप नहीं बढ़ा रहे हैं। तो एंजाइम भी तो अपनी एक पर्टिकुलर एफिनिटी पे काम करेगी ना, वो एफिनिटी सब चेंज नहीं कर सकती। जाहिर सी बात है वो जब प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट करेगा, कुछ टाइम लेगा, रिलीज होगा और फिर जाके दूसरा सबस्ट्रेट उठाएगा। इस दौरान अगर आपने 3, 4, 5 सबस्ट्रेट भी रखे हैं तो कोई फायदा नहीं है, जब तक सारे एक्टिव साइट खाली नहीं होंगे वो अगले सबस्ट्रेट पे एक्ट ही नहीं करेगा। जबकि शुरू में सारे एंजाइम खाली पड़े हुए थे, इसलिए वो सारे के सारे एंजाइम ने एक जो ही आपने सबस्ट्रेट बढ़ाए फौरन सारे ऑक्युपाइड हो गए एंजाइम। लेकिन अब वो मजीद सबस्ट्रेट आप बढ़ा रहे हैं, लेकिन इट टेक्स टाइम फॉर द एंजाइम मॉलिक्यूल टू रिलीज एंड देन टू एक्ट। यू गेटिंग? यस। अच्छा चलिए, ये देखिएगा जरा एक ग्राफ है आपके सामने। यहाँ मुझे बताओ मैंने कितने सबस्ट्रेट रखे हैं। अगर आप देखें तो ये सबस्ट्रेट की जो सर्कल है, सबस्ट्रेट है 1, 2, 3, 4 सबस्ट्रेट नजर आ रहे हैं और 3 एंजाइम है। इस वक्त कितना एंजाइम ऑक्युपाई हुआ है? सिर्फ एक एंजाइम, क्योंकि एफिनिटी कम है, सबस्ट्रेट इतनी दूर दूर है एंजाइम से, इसलिए बड़े मुश्किल से रिएक्ट कर रहे हैं। अगर आप मीडियम पे आ जाए, मीडियम रेट पे, तो मैंने सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल बढ़ा दिए, इनडायरेक्ट मैंने थोड़ी एफिनिटी बढ़ा दी और अब 2 एंजाइम कम से कम ऑक्युपाई हो गए, रेट बढ़ गया और सबस्ट्रेट मैंने बढ़ा दिया। यहाँ एंजाइम, यहाँ सबस्ट्रेट कम था, यहाँ बढ़ा दिया। तीसरे पे आ जाइएगा, हाईएस्ट। अब देखो आपने इतना सबस्ट्रेट बढ़ा दिया कि सारे एंजाइम के एक्टिव साइट्स को आपने ऑक्युपाई, जो एंजाइम काम नहीं कर रहे थे वो भी काम में आना शुरू हो गए, क्योंकि आपने सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी। आर यू गेटिंग? यस सर। बेटा आप लोग सब समझ रहे हो? अनम, आर यू गेटिंग? यस सर। Yes, sir. ठीक है।
अब्दुल हादी, आर यू गेटिंग? लेकिन अगर आप सबस्ट्रेट बढ़ाते हैं, an increase in the substrate concentration increases the chances of successful collision between the active sites of the enzymes and the substrate molecule to produce more enzyme substrate complex and hence more products molecule per unit of time. Chances बढ़ेंगे तो ES भी बढ़ेगा और ES बढ़ेगा तो प्रोडक्ट भी बढ़ेंगे पर यूनिट टाइम। तो इसका मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से वॉल्यूम तो लाजमी बनेगा, प्रोडक्ट भी, टोटल प्रोडक्ट भी ज्यादा बनेगा क्योंकि हमने ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन कर दी सबस्ट्रेट की। लेकिन रेट पे भी फर्क पड़ता है क्योंकि इनडायरेक्टली आप एंजाइम के एक्टिव साइट को जल्दी जल्दी ऑक्यूपाई करा रहे हो, एफिनिटी बढ़ा रहे हो। Finally, the rate of reaction becomes constant no matter how much substrate concentration is increased as all active sites have been occupied. तो जब तक एंजाइम कुछ खाली थे और सबस्ट्रेट बढ़ाने से वो ऑक्यूपाई हो रहे थे, तो वो कॉन्सेंट्रेशन जिसपे सारे एक्टिव साइट एंजाइम की ऑटोमेटिकली ऑक्यूपाई हो जाएं, उसको हम कहते हैं कि अब मजीद सबस्ट्रेट बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जाहिर सी बात है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड लगेगा एंजाइम सबस्ट्रेट को रिएक्ट करने में। तो सबस्ट्रेट जितना भी हो, रेट अब बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा, नहीं बढ़ेगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. नबील, कैरी? Yes, sir. Similarly, increasing the concentration of enzymes also increases the rate of reaction. लेकिन क्या होना चाहिए? Keeping concentration of the substrate in axis. अगर सबस्ट्रेट बहुत ज्यादा हो और फिर आप एंजाइम बढ़ाएंगे तो भी रेट बढ़ेगा। तो दोनों के लिए कंडीशन हो गई, या तो एंजाइम एक्सिस में हो और आप सबस्ट्रेट बढ़ा दें, या फिर आप एंजाइम बढ़ाएं और सबस्ट्रेट एक्सिस में हो। तो दोनों कंडीशन में हमारा रेट बढ़ेगा और बढ़ने का जो रेट होगा वो पहले बढ़ेगा फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, इसलिए कि अब आपके सारे एक्टिव साइट ऑक्यूपाई हो गए। More enzyme concentration means more active site. More enzyme concentration means more active site to bind more substrate if available and hence to produce more product molecule per unit of time. ये बात समझ गए बेटा? If there is limited number of substrate molecule, the active site of the enzyme will remain vacant as no substrate molecule are available to bind with it. मतलब क्या हुआ? अगर आपके पास सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ही कम है और एंजाइम एक्सिस में है, तो कुछ एंजाइम फारिग बैठे रहेंगे, उनके एक्टिव साइट खाली पड़े रहेंगे क्योंकि सबस्ट्रेट ही नहीं है। इसलिए सारे एंजाइम फुल एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर रहे होंगे, तो आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्लो होगा। This again decreases the rate of enzyme controlled reaction. कोई चीज समझ में ना आए तो पूछ लिया करें बेटा, क्योंकि इसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है। चीजें बाजार बड़ी सिंपल लगती है लेकिन इतनी सिंपल है नहीं। अब हम एंजाइम रिएक्शन के रेट को कंपेयर करने जा रहे हैं। कंपेयर द रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन। While comparing rate of enzymatic reaction, it is necessary to calculate the initial rate of reaction. जब भी आप, तो मैंने जैसे नबील अभी थोड़ी देर पहले आपसे क्या कहा था कि जब दो रिएक्शन को या तीन रिएक्शन को कंपेयर करेंगे तो कंपैरिजन हमेशा इनिशियल रेट पे होगा, बीच में नहीं होगा। It is usually calculated by measuring the concentration of product at first 30 seconds, कि पहले 30 सेकंड में कितना प्रोडक्ट बना है। The reason is that concentration of substrate remains changed with the passage of time. थोड़ी देर पहले आपने क्या कहा, जरा मुझे एक बात बताओ। सबस्ट्रेट अगर ज्यादा होगा और एंजाइम भी ज्यादा होगा तो उसका रेट फास्ट होगा, या सबस्ट्रेट अगर कम होगा और एंजाइम बेशक बराबर हो, एक्सिस में हो, तो फिर वहां रेट पहले के मुकाबले में स्लो हो जाएगा या फास्ट हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। स्लो हो जाएगा, यानी अगर आपके
बेटा सॉरी लाइट चली गई थी. आई हैव कनेक्टेड इट अगेन, सो प्लीज स्टे विद मी फ्रॉम द सेम पॉइंट. थैंक यू. चैम्बर ए के अंदर 50 एंजाइम है और चैम्बर बी के अंदर भी 50 एंजाइम है, लेकिन चैम्बर ए के अंदर 100 सबस्ट्रेट है और चैम्बर बी के अंदर 200 सबस्ट्रेट है. तो इसका मतलब ये हुआ कि रेट कौन सा फास्ट होगा, कौन सा स्लो होगा? बी वाला फास्ट होगा क्योंकि इसमें 200 सबस्ट्रेट है. तो सबस्ट्रेट कम ज्यादा से रेट फर्क पड़ता है. इसलिए ये कह रहे हैं कि अगर आप शुरू में रेट मेजर नहीं करते और बाद में करते हैं तो बाद में तो सबस्ट्रेट बराबर नहीं है. जो फास्ट रिएक्शन था उसके अंदर कम सबस्ट्रेट रह गया है और जो स्लो रिएक्शन था उसके अंदर ज्यादा सबस्ट्रेट रह गया. और जब सबस्ट्रेट वेरी होती है तो रेट पे ऑटोमेटिकली फर्क पड़ जाता है. इसलिए ये फेयर नहीं होगा. फेयर ये होगा कि आप इनिशियली जितनी जल्दी रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं उतना अच्छा होगा. Since the concentration in both reaction is near about the same at the start of the reaction, therefore it is better to compare as early as possible. For fair comparison, equal concentration of substrate, क्या कह रहे हैं? For fair comparison, equal concentration of substrate in a fixed volume of enzyme fix रखे. Equal concentration of substrate in a fixed volume of enzyme should be used. However, in the middle of reaction, the faster reaction contains less substrate as compared to the slower reaction due to its high turnover rate. तो इस सेंटेंस ने आपको सब कुछ क्लियर करके दे दिया है कि अगर आपके पास रिएक्शन दोनों चैम्बर के अंदर सबस्ट्रेट भी बराबर हो और एंजाइम भी बराबर हो, दोनों में क्या होगा? लेकिन जब टाइम गुजरने के बाद आप दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सबस्ट्रेट की चेक करेंगे तो जो स्लो रिएक्शन होगा उसके अंदर सबस्ट्रेट ज्यादा होगा और जो फास्ट वाला होगा उसमें सबस्ट्रेट कम होगा. इसलिए अब अगर यहां से आप रिएक्शन प्रोसीड करेंगे आगे तो क्या होगा? जो फास्ट वाला है वो स्लो हो जाएगा और स्लो वाला फास्ट हो जाएगा. सही है? This can be explained well by comparing the rate of 5 reactions having different volumes of an enzyme solution and hence different enzyme concentration. आपके सामने एक ग्राफ अभी आएगा जिसमें 5 डिफरेंट रिएक्शंस है. सही है? 5 डिफरेंट रिएक्शन है और इन रिएक्शन के अंदर हमने सबस्ट्रेट को फिक्स लिया है लेकिन एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन को हमने वेरी किया है. एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन कैसे वेरी किया है? एंजाइम सॉल्यूशन का वॉल्यूम डिफरेंट लिया है. यानी एंजाइम का एक सॉल्यूशन एक बीकर के अंदर पड़ा है जिसमें एक एंजाइम सॉल्यूशन है. उनमें से छोटी-छोटी बीकर में हमने 5 बीकर लिए. एक में 5 cm क्यूब वॉल्यूम लिया, एक में 4 cm क्यूब लिया, एक में 3 cm क्यूब लिया, एक में 2 cm क्यूब लिया. अब अगर आप एंजाइम वॉल्यूम चेंज करोगे तो ऑफ कोर्स उसके एंजाइम के नंबर ऑफ मोल्स भी डिफरेंट होंगे, कम ज्यादा होंगे. इसलिए हमने एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर दिया. एंजाइम का एंजाइम सॉल्यूशन का वॉल्यूम चेंज करने से क्या होगा? एंजाइम के नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे और कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी. तो हम वॉल्यूम ऑफ एंजाइम यूज कर रहे हैं डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर. समझ रहे हो? अच्छा, graph shows the results of an investigation in which different volume of catalase solution enzyme solution were added to the same volume of hydrogen peroxide solution. हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमने सेम रखा हुआ है, बिल्कुल सेम, लेकिन जो एंजाइम का वॉल्यूम है वो चेंज करते जा रहे हैं जिससे इसका मतलब ये है कि आप एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन को वेरी कर रहे हो. बेटा फोकस रखिए प्लीज. The shape of all 5 curve is similar. Similar, the reaction begins very quickly, steep curve, and then gradually slows down, curve off. ये देखिएगा, प्लीज फोकस कीजिएगा. ये टाइम है. मैं पहले एक ग्राफ की बात करता हूँ, पहले वाले की. यहाँ वॉल्यूम कितना है एंजाइम की? 0.5 cm क्यूब है. यहाँ वॉल्यूम 1, यहाँ वॉल्यूम 2, यहाँ वॉल्यूम 3, ये वॉल्यूम 4. ये एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन हम बढ़ा रहे हैं और सबस्ट्रेट हमने ग्राफ के अंदर दिया नहीं है, सबस्ट्रेट फिक्स्ड है हमारे पास और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो यहाँ आ रहे हैं. ये प्रोडक्ट है और ये एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन है. तो जब आपने 0.5 cm क्यूब एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन यूज की थी वॉल्यूम, उस पे आपके पास टोटल प्रोडक्ट कितना बना आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं. इस पे कितना बना उतने टाइम में? इतना बना. इस पे कितना बना? इतना बना. इसमें कितना बना? इतना बना. और इसमें
कितना बना 10 cm³ हर 240 सेकेंड्स। तो अब आप देखिए, प्लीज मेरे साथ रहिएगा। अगर इसको देख के मैं दो बातें कर रहा हूँ और जरा कान खोल के सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक आदमी आपसे पूछता है कि यार मुझे जरा इस एंजाइम का जो कि 0.5 cm³ है और इस एंजाइम का जो कि 4 है, इन दोनों का रेट निकाल के दिखाएं। तो रेट के लिए आप क्या करते हो, आप फॉर एग्जांपल ये निकालते हो और आप देखते हो कि ये 2.5, आप कहते हैं 2.5 को आप डिवाइड कीजिएगा 240 सेकंड से, तो मेरे पास रेट आ जाएगा। फिर आप कहते हैं अच्छा इसको क्या करें, अगर इसका रेट निकालोगे तो 10 को डिवाइड कीजिएगा 240 से, तो इसका रेट आ जाएगा। तो क्या ये फेयर होगा? नो सर, नो हाँ, सर। क्योंकि आपने एवरेज निकाला। इनिशियल रेट। बिल्कुल, आपने एवरेज निकाला, आपने एवरेज नहीं, कभी भी आप एवरेज नहीं, अगर आप कंपेरिजन करें तो ये फेयर कंपैरिजन बिल्कुल नहीं है। इससे बेहतर ये था कि आप ये कहते कि 30 सेकंड पे इसका जो रेट है वो 0.5 cm³ आ रहा है, 0.5 cm³ और इसका आ रहा है कितना 10 cm³। तो ये कितना टाइम्स बढ़ गया रेट? अगर आप 10 को डिवाइड करते हैं 0.5 से तो कितना हो जाएगा? 20 टाइम्स। हाँ, तकरीबन 20 टाइम्स। और अगर आप इस तरह करते एवरेज के हिसाब से तो इतना फर्क नहीं आता। तो दिस इज नॉट अ फेयर कंपैरिजन। सो ऑलवेज यू हैव टू कैलकुलेट द रेट इनिशियली एट 30 सेकंड्स। तो हम इन सब के रेट्स को यूं कंपेयर करेंगे, ये 30 सेकंड पे 0.5 आ रहा है, जब हमने एंजाइम 1 कर दिया तो ये 1 आ गया, जब हमने एंजाइम 2 किया तो इसका रेट 1.5 हुआ, जब एंजाइम 3 किया तो इसका रेट जो है वो 2.7 हुआ, जब हमने 4 किया तो इसका रेट जो है वो 3 पॉइंट समथिंग हुआ। तो इनिशियल रेट पे हम क्या करें। अच्छा, अब एक बात मुझे और बताएं, अब अगर मैं इनिशियल रेट के हिसाब से इनका ग्राफ बनाऊं तो वो कैसे आना चाहिए? लीनियर ग्राफ आना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट ग्राफ आना चाहिए। अगर हम सिर्फ इनिशियल रेट लेके यहाँ पर अगर हम, मैं दिखा देता हूँ। चलिए बेटा, चूंकि आप लोगों का टाइम खत्म हो गया है क्लास की, तो फिर इसको थोड़ा सा मैं दोबारा कल जो क्लास होगी उसमें 5-6 मिनट शुरू से स्टार्ट लूंगा, ताकि आप इसको रिकनेक्ट कर सके। और प्लीज आप एक्नॉलेज कीजिएगा कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ रहा है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें, क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ठीक है, तो चले इंशाल्लाह ताला फिर कल इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। आज तक इतना ही काफी है और इसको थोड़ा सा शुरू से स्टार्ट लेंगे। थैंक यू वेरी मच बेटा, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।